Hmm. So, good afternoon, students. Let us start. Okay. Can you see the screen, Bhaskar or Anamol? Please respond. Screen दिख रहा है तो? Yes, ma'am. Okay. So let us start. See, this class is your quantity survey estimation and valuation, right? And in this topic, this basically this is a sessional. You need to practice. Okay, numericals you need to practice. So basically, here we will be learning about how to estimate different quantities which will be required in the construction. Okay, in the site, whatever the construction materials that are required, we need to estimate. Why? After knowing what is the quantity of the materials that are required, we can calculate what is the amount that will be necessary for construction work. Okay, so not only the materials but also the labor works also we can estimate in this procedure. Okay, so we have started. There were two methods of building estimate. What was your one was your long wall short wall method. We have solved some numericals also based on that method. Then we went for another method which is the central line method. And this central line method, as I said in our previous lecture, that it is applicable, or we can say it is very well applicable for symmetric structure. Symmetric structure means what? The whole structure will have one center line, and if we cut that structure through that center line, okay, in both the section, both the parts should be of equal width. That is called the symmetric structure, which we have already discussed. Say for example, in the last lecture we have estimated the quantity estimation of the boundary wall, which was symmetric in structure. Okay, which is an example of a symmetric structure. Today this is the extension. Okay, or we can say here we will be, in the previous lecture we have estimated quantity, we have done quantity estimation of a boundary wall. Now what we will be doing, we will estimate the partition wall with the same section. That means this is an example. See, initially this was the structure, this was the boundary structure. Okay, there was no partition wall in between this one in the structure. Okay, and please remember this is a top view. ओके, ये टॉप व्यू है. ऊपर से अगर बाउंड्री वॉल देखोगे तो ऐसा दिखेगा, जिसका वॉल का थिकनेस इज दिस मच. ओके, नाउ टुडे व्हाट वी आर मॉडिफाइंग, यहाँ पे और एक मॉडिफिकेशन क्या होगा, देयर विल बी अ पार्टीशन वॉल. पार्टीशन वॉल क्यों होता है? जब हम लोग बिल्डिंग एस्टिमेट करते हैं, ओके, देयर विल बी सेवरल फ्लोर्स. ओके, द फ्लोर को सेपरेट करने के लिए पार्टीशन वॉल रहता है. ठीक है, इसीलिए ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि व्हेनेवर देयर इज अ पार्टीशन वॉल और देयर इज अ जंक्शन. Junction means when three walls meet together. Okay, when three walls are joined together, that is called the junction. In this case, can you tell me what is the number of junctions? You can see here. यहाँ पे कितना जंक्शन तुमको दिखाई दे रहा है? अगर एक पार्टीशन वॉल है, ऐसा वॉल है, बीच में एक पार्टीशन वॉल दे दिया, तो कितना जॉइंट्स तुमको दिखाई? 2, राइट? कहाँ कहाँ पे? सी, ये एक वॉल है, दिस इज अनदर वॉल, दिस इज अ थर्ड वॉल, तो यहाँ पे एक जंक्शन है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे एक वॉल आ रहा है, यहाँ से एक वॉल आ रहा है, यहाँ से एक वॉल आ रहा है, तो यहाँ पे एक जंक्शन हो रहा है. ओके, सो अगर यहाँ पे ऐसा सिंगल पार्टीशन वॉल होता है, सो दिस देयर आर हाउ मेनी जंक्शंस? 2 जंक्शंस आर देयर. ठीक है, सो इन सच केसेस हमको क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? अगर ये बाउंड्री वॉल नहीं होता तो क्या करना चाहिए था? एनीवन? इफ देयर वाज नो बाउंड्री वॉल, ठीक है, अगर ये बाउंड्री वॉल नहीं रहता तो कैसा होता था तुम्हारा? ये पूरा हम इसको एक्सटेंड कर देते. ओके, लेट अस एक्सटेंड दिस वन. इसको हमने इधर एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे भी सॉलिड लाइन बना दिया. ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल लाइन मेथड, प्रोसेस क्या था सेंट्रल लाइन मेथड का? फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द
सेंटर लाइन लेंथ, राइट। हमको एक सेंटर लाइन लेंथ का कैलकुलेशन करना जरूरी था, विच वी कैन सी हियर लाइक दिस। मतलब एक ही सेंट्रल लाइन का लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। ये है तुम्हारा टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ, ठीक है। दिस इज द टोटल सेंट्रल लाइन length, okay. So if we know this length and if we multiply this length with the thickness of the wall, okay, ये thickness जितना भी होगा, ये रेड लाइन का लेंथ निकाल लेंगे और ये थिकनेस जो भी है, ठीक है, वेदर इट इज 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.9, कुछ भी, ठीक है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल गेट एन एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया हमको मिलेगा, ये पूरा एरिया हमको मिल जाएगा, ओके। सो वी गॉट द एरिया। अब हमको वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करना है, वी विल सिंपली मल्टीप्लाई दिस एरिया विद द हाइट, ठीक है। तो लेंथ निकालो, थिकनेस निकालो और हाइट निकालो, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या केस हो रहा है, देखो यहाँ पे तुम्हारा एक पार्टीशन वॉल एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। तो इस पार्टीशन वॉल का भी हमको एक सेंटर लाइन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब क्या कर रहे थे, अगर पार्टीशन वॉल नहीं था तो सिंपल ये लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे विथ के साथ, ठीक है। बट इन दिस केस देयर इज अ वन मोर वॉल, तो ये वॉल का भी तो पार्टीशन वॉल हमको चाहिए, यहाँ पे भी तो कंस्ट्रक्शन होगा, हमको तो ये वाला भी तो एरिया चाहिए, राइट। वी नीड टू कैलकुलेट दिस एरिया ऑल्सो, ठीक है। तो ये एरिया भी हमको चाहिए। पहले कौन सा एरिया निकाला था, पहले सिर्फ ये एरिया निकाले थे हम, ये एरिया लाल कलर का जो भी है इनटू ग्रीन कलर का वो करने से वी आर गेटिंग दिस एरियाज, ओके। हमको ये एरिया मिल रहा था पहले। अब हमको बचा कौन सा एरिया, देखो ये बीच का पार्टीशन वॉल का एरिया भी हमको लेना था, ठीक है। तो इन दैट केस ये एरिया हमको कैसे मिलेगा, इफ वी नो द लेंथ, अगर हमको ये लेंथ पता चल जाएगा, ओके, एंड इफ वी नो द विथ, ये लेंथ और विथ अगर पता चलेगा, क्या हो जाएगा, दिस रेड एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो हमको ये बीच वाला का भी एक सेंटर लाइन चाहिए, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल सेंटर लाइन लेंथ कौन सा हो जाएगा, टोटल सेंटर लाइन लेंथ विल बी फ्रॉम हियर टू, ये लेंथ तो रहेगा पिछले जो था, पहले जो था, ठीक है, ये जो था ये तो रहेगा। अब इसमें एक्स्ट्रा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ दिस वॉल, ओके। मतलब यहाँ से लेकर नहीं होगा, एकदम यहाँ से सेंटर से लेकर सेंटर तक, तो हमको ये लेंथ भी चाहिए रहेगा, ठीक है। नाउ कैन वी से दैट इफ वी गेट दिस टोटल लेंथ and if we multiply this with the width we will get the area, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, बोलो। हमको ये एरिया चाहिए, ये जो रेक्टेंगल के अंडर में जो भी आएगा एरिया, वो एरिया हमको चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे थे, हम क्या ये बोल सकते हैं कि अगर ये पूरा लेंथ हम निकालेंगे और विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सो कैन वी गेट द टोटल एरिया। एरिया के लिए क्या चाहिए, लेंथ इनटू विड्थ चाहिए था, राइट। तो कर सकते कि नहीं कर सकते, इफ वी गेट द टोटल लेंथ ऑफ द सेंटर लाइन, सेम फंडा, लेंथ निकाल लो, ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अब लेंथ के साथ अगर हम विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट दिस होल एरिया, ये एरिया तो आएगा ही, ठीक है। बाउंड्री का तो ये एरिया आ ही रहा है, ओके। और साथ में ये वाला एरिया भी हमको मिल जाएगा, ओके। सो वी आर गेटिंग दिस एरिया ऑल्सो, ठीक है। अब ये एरिया अगर हमको पता है, एंड इफ वी मल्टीप्लाई दिस एरिया विद द हाइट और द डेप्थ, we will easily get the required volume, whether it is of brick work, whether it is of तुम्हारा क्या बोलते हैं पीसीसी वर्क, जो भी है उसका वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये सेंटर लाइन निकालना है, ओके, क्लियर। तो ये डॉटेड लाइन हमको निकालना पड़ेगा, ओके। सो इसके लिए क्या क्या चाहिए, सपोज ये वाला थिकनेस हमको पता है 0.3, मतलब इस वाले वॉल का हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा पूरा, ठीक है। तो
0.3 0.3 0.3 0.3 है, whereas inner to inner is 5 मीटर 5 मीटर और breadth है 4 मीटर 4 मीटर. So can we calculate the length? ये black color का जो भी है इसका length निकल आएगा. कैसे निकलेगा बोलो तो, can we calculate or not? कैलकुलेट करके बोलो कितना आएगा. ये जो ब्लैक कलर का जो है डॉट 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 करके डैश डैश करके इसका लेंथ हमको चाहिए. एंड दिस आर द डाटा विच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डायग्राम. तो लेंथ कैसे निकलेगा बोलो. पहले बोलो ये लेंथ निकालो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ कितना होगा बोलो. फ्रॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ बोलो कितना होना चाहिए. ये जो ब्लैक कलर का जो था, जो ब्लैक कलर का है ये वाला लेंथ हमको चाहिए. तो निकालो ये लेंथ कितना होगा. हम्म 10.6 ठीक है, देखते हैं कैसे आ रहा है 10.6. सी बोलो, पहले बोलो ये लेंथ कितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा. फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ कितना है. दिस इज 0.3. सेंटर लाइन विल डिवाइड दिस इनटू हाफ, सो दिस इज 0.3/2. ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है तुम्हारा कितना 0.3/2. ओके, फिर अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इट इज अगेन 5 मीटर. ठीक है, 5 मीटर है. फिर यहाँ पे 0.3/2 प्लस 5 मीटर प्लस ये थिकनेस कितना है, दिस इज 0.3. ठीक है, अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, दिस इज योर 5 मीटर. और ये जो बीच बीच का ये है ये कितना है 0.3/2. तो कैलकुलेट करने से देखो कितना आएगा, 0.3/2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0.3 प्लस 5 प्लस 0.3/2. सो आ रहा है 10.6. ओके, तो ये लेंथ तुमको पता है. ठीक है, यू नो दिस लेंथ, ये लेंथ तुमको मिल गया है विच इज 10.6. ऑब्वियसली ये भी सेम ही रहेगा, ये भी 10.6 ही रहेगा. ठीक है, अब तुमको ये जो इस वाला का है ये वाला का निकालना है विच इज ये ब्लू से अगर हम मार्क कर रहे हैं तो इसका लेंथ कितना होगा बोलो तो. 4.3. यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, देखो ये डिस्टेंस 4.3. इज हाउ मच 0.3/2. हाँ, दिस इज 4 अगेन 0.3/2. सो 0.3/2 प्लस 4 प्लस 0.3/2 विच इज 4.3. ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है तुम्हारा 4.3 है. ओके, सो दिस लेंथ इज 4.3. तो ऑब्वियसली ये लेंथ भी तुम्हारा 4.3 होगा. ठीक है, और ये लेंथ भी तुम्हारा 4.3 होगा. नाउ टेल मी व्हाट इज द टोटल सेंटर लाइन लेंथ. ये दो ग्रीन लाइन ऐड करो 3 ठो ब्लू लाइन के साथ. ये ग्रीन लाइन का है 10.6 और ये ब्लू लाइन का है 4.3. कितना होगा, दिस इज 10.6, दिस इज 4.3. सो व्हाट इज द टोटल सेंटर लाइन लेंथ. तो ये क्या है, ये है 10.6 10.6. सो हम लिख सकते हैं ना इसको 2 इंटू 10.6. ठीक है, 2 इंटू 10.6 प्लस 4.3 4.3 4.3 तीन टो है तो 3 इंटू 4.3 करके कितना आ रहा है, देखो आ रहा है तुम्हारा कितना 34.1 आएगा. ओके, तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो. तो 2 इंटू दोनों तरफ ग्रीन 2 है तो 2 इंटू 10.6 और ब्लू कलर का 3 2 है तो 3 इंटू 4.3. सो 34.1 34. हाँ टोटल सेंटर लाइन लेंथ. ठीक है, वंस यू नो द सेंटर लाइन लेंथ फिर हम ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. तुम्हारा लेंथ वाला कॉलम मिल गया, ब्रेथ वाला कॉलम हमको पता है, हाइट भी हमको पता चलेगा. तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देने से वी विल गेट द वॉल्यूम. ओके, इतना फंडा क्लियर है. ठीक है ना. तो
अब लेकिन इफ देखो, अगर हम ये ग्रीन कलर का लाइन जो था, इसके साथ ये जो ग्रीन कलर का लाइन है, हम क्या बोले थे, एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है, ये जो भी थिकनेस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इफ वी मल्टीप्लाई दिस ग्रीन कलर का लाइन विद दिस थिकनेस 0.3, तो कौन सा एरिया मिलेगा हमको, बोलो तो कौन सा एरिया मिलेगा हमको? वी विल गेट दिस एरिया। ठीक है, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर हम ये वाला लाइन, सॉरी, इफ वी मल्टीप्लाई this length, okay, with this thickness, then again we are getting this area, sorry, we are getting only this area। ठीक है, हमको ये एरिया मिलेगा। ठीक है, अब देखो 4.3 कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से 4.3 है यहाँ से। ठीक है, तो 4.3 कहाँ पे जाएगा, यहाँ तक जाएगा 4.3। देखो ये वाला है, यहाँ तक है। तो 4.3 इंटू ये थिकनेस करेंगे तो विच एरिया वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग दिस एरिया। ठीक है, सिमिलरली 4.3 यहाँ का 4.3, ठीक है, 4.3 कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट था, यहाँ से, और इसका सेंटर तक जाएगा, इंटू ये वाला कर देंगे तो कौन सा एरिया मिलेगा हमको, ये वाला एरिया। ठीक है, ठीक है। अब ये एरिया तो निकल गया, ये एरिया तो निकल गया नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ग्रीन का भी एरिया था, ब्लू का भी एरिया था, ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एरिया मिलाएंगे तो ग्रीन और ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला एरिया बाद नहीं गया है, यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो हमको ये एरिया मिल जा रहा है। अगर हम सेंटर लाइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे विथ को, तो वी आर गेटिंग दिस एरिया ऑल्सो। तो ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, ये कॉर्नर कॉर्नर वाला एरिया इंक्लूडेड है, बाद नहीं गया है। ठीक है, अब बचा बीच वाला सेंटर लाइन। देखो बीच वाला सेंटर लाइन कहाँ से था, यहाँ से था, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। लेकिन हमने तो ऑलरेडी यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन कर दिया है, हमने तो वॉल खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब दोबारा क्या उसके ऊपर ही तुम वॉल कंस्ट्रक्ट करोगे? एरिया कंसिडर करना मतलब क्या है कि तुमने ऑलरेडी यहाँ पे गड्ढा खोद, अगर तुमने यहाँ पे फुटिंग बनाना है तो एक्सकवेशन करने के लिए ऑलरेडी गड्ढा खोद दिया है तुमने। ठीक है, सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग दिस 4.3, ये पूरा वाला 4.3 अगर हम कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे देखो ये एरिया जो है, ये एरिया तुम्हारा ओवरलैप हो जाएगा, मतलब कि यहाँ तक आएगा वो एरिया। ठीक है, ये जो ब्लू कलर का लेंथ इंटू ये करेंगे तो हम ये वाला ब्लू कलर का शेडेड आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इफ वी मल्टीप्लाई, सॉरी, इफ वी मल्टीप्लाई 4.3 कहाँ से था, यहाँ पे था, तो सेंटर लाइन तो यहाँ से था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इंटू ये लेंथ हम करते तो ये ब्लू कलर का एरिया आता। ठीक है, लेकिन इसमें तो ये ग्रीन वाले में तो ऑलरेडी यहाँ पे तो एरिया हमने इंक्लूड कर दिया है। अब ब्लू वाला भी अगर फिर से इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो क्या हमको वो एरिया लगेगा, ये वाला इतना एरिया हमको क्या लगेगा, बोलो तो? इतना एरिया, ये ब्लू कलर में से इतना एरिया क्या हो जा रहा है, ओवरलैप हो जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे ग्रीन एरिया हमको निकाल चुके थे। ग्रीन एरिया वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड, मतलब यहाँ से जो भी ग्रीन एरिया पास होके गया था, अब फिर से ये सेंटर लाइन पकड़ के अगर हम चलेंगे तो ये एरिया फिर से कंसिडर करना पड़ रहा है, तो तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, और रीडिंग भी भूलभाल आएगा। तो दिस एरिया इट इज बीइंग ओवरलैप्ड, सो हमको क्या करना है, ये ब्लू वाले एरिया से ये वाला एरिया निकाल देना है, ये वाला एरिया भी निकाल देना है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए हमको कितना लेंथ माइनस करना पड़ेगा, बोलो? ये वाला एरिया के लिए इसका, ये वाला एरिया का लेंथ कौन सा है, विथ इज सेम, ये वाला एरिया का तुम्हारा विथ सेम है, मतलब दिस इज ऑल्सो 0.3, ये भी 0.3 है, सिर्फ यहाँ पे हमको लेंथ को डिडक्ट करना है विच इज दिस लेंथ। ओके, तो सेंट्रल लाइन जो भी होगा, बीच वाला का जो सेंट्रल लाइन है उसमें से हमको दोनों तरफ का लेंथ माइनस कर देना है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस लेंथ, इतना लेंथ कितना है, बोलो तो? ये लेंथ कितना है,
अगर ये पूरा 0.3 है तो इतना लेंथ कितना है इस तरफ, अगर ये भी पूरा 0.3 है तो ये लेंथ कितना था, ये तो जा रहा था सेंटर तक, ठीक है, ये वॉल का सेंटर तक जा रहा था, मतलब यहाँ से तुम्हारा सेंट्रल लाइन पास हो रहा था, यहाँ से सेंट्रल लाइन पास हो रहा था। सो व्हाट इज दिस लेंथ एंड व्हाट इज दिस लेंथ, यहाँ से भी सेंट्रल लाइन पास हो रहा था, तो बोलो ये लेंथ कितना होगा, ये पूरा लेंथ कितना है बोलो पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लेंथ कितना है 0.3 है। अब यहाँ से सेंटर लाइन पास कर रहा है, मतलब इस तरफ 0.3/2 है, इस तरफ 0.3/2 है, सेम ये लेंथ पूरा तुम्हारा सेंटर लाइन से होके पास कर रहा है। सो दिस टोटल लेंथ इज 0.3, सो दिस मच लेंथ इज 0.3/2, दिस मच लेंथ इज 0.3/2, ठीक है। सो अब बोलो टोटल सेंटर लाइन लेंथ जो है 34 में से हमको क्या माइनस करना चाहिए, कितना लेंथ माइनस करना चाहिए, जिससे कि ये रेड अंदर जो भी एरिया है 9, 9. ये जो भी एरिया है इसको हम डिडक्ट कर सकें, ये एरिया को डिडक्ट करने के लिए कितना लेंथ माइनस करना चाहिए बोलो, ये एरिया डिडक्ट करने के लिए हमको इतना लेंथ ही माइनस करना है, राइट, ये लेंथ ही हम पूरा माइनस कर देंगे टोटल सेंटर लाइन से, ठीक है। तो ये लेंथ कितना है, अगर ये पूरा 0.3 है, सो हाउ व्हाट इज दिस लेंथ देन, 0.15. हाँ 0.3/2 है, हाफ है ना, देखो ये पूरा 0.3 है तो ये 0.3/2 है, सेम ये पूरा 0.3 है तो ये भी 0.3/2 है, ओके। तो हमको ये जो ब्लू कलर का जो है उसमें से कितना माइनस करना है, उसमें से यहाँ से ये 0.3/2 माइनस करना है और यहाँ से 0.3/2 माइनस करना है, ओके। तो टोटली आ रहा है कितना 0.3 हमको माइनस करना पड़ रहा है ना। 0.3 इज व्हाट, 0.3 इज नथिंग बट द विथ, ये जो विथ है इसका सेक्शन है, ओके। तो 0.3 इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द विथ ऑफ द सेक्शन। अगर ये तुम्हारा 0.6 होता तो 0.6 माइनस करता, अगर ये तुम्हारा 0.9 होता 0.9 हमको माइनस करना पड़ता, ठीक है। वट एवर द विथ, उसका हाफ इस तरफ माइनस लेंथ, इसका हाफ इस तरफ माइनस लेंथ करना है, ओके। दैट मीन्स तो कितना माइनस करेंगे, विथ का हाफ इस तरफ, विथ का हाफ इस तरफ, मतलब टोटल मिला के पूरा विथ माइनस करना है सेंट्रल लाइन से, ओके। तो ये इसको हम लिख सकते हैं, वी शुड माइनस द विथ ऑफ द सेक्शन, ओके। अब ये विथ कैसे होगा, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ से माइनस कर रहे हैं, मतलब कि 2 इंटू हाफ ऑफ द विथ, राइट, 2 इंटू हाफ ऑफ द विथ, ये भी लिख सकते हैं, ओके। 2 इंटू हाफ ऑफ द विथ, दोनों तरफ से माइनस करना है। अब ये दो क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ जंक्शन, ओके, दिस इज द नंबर ऑफ जंक्शन, मतलब यहाँ पे देखो एक जंक्शन था, यहाँ पे एक जंक्शन था, तो जितना जंक्शन होगा उतना ही यहाँ पे नंबर बिठेगा। अगर 3 ठो जंक्शन से यहाँ पे 3 ठो रहेगा, 4 ठो होने से यहाँ पे 4 ठो रहेगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ द विथ हमको माइनस कर देना है, ओके, क्लियर। तो इन सच केसेस डिडक्शन नंबर ऑफ जॉइंट्स कितना है, फॉर दिस एग्जांपल देयर आर 2 डिडक्शन, सॉरी 2 जंक्शंस, तो डिडक्शन कितना हो जाएगा 2 इंटू ये हाफ ऑफ द विथ होगा, ओके, दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाय width of the section, half of the width of the section होगा, ओके। यहाँ पे हाफ होगा, ये गलत हो गया, दिस विल बी हाफ, ओके। सो टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ द विथ ऑफ द सेक्शन, ठीक है। चलो अब निकालते हैं सेंटर लाइन का लेंथ। तो देखो यहाँ पे विथ क्या सेम है, फॉर एवरी स्ट्रक्चर विथ सेम है, बोलो। अगर हम ये वाला एस्टिमेट करेंगे तो इसका विथ कितना है 0.9 है, अगर ये एस्टिमेट करेंगे इसका विथ 0.6 है, ये वाला करेंगे तो इसका विथ 0.5 होगा, ठीक है। सो डिडक्शन भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, डिडक्शन भी चेंज होता जाएगा, बिकॉज डिडक्शन इट इज डिपेंडेंट अपॉन द विथ। ये लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, विथ के ऊपर, ये लेंथ कितना होगा विथ के ऊपर, अगर ये 0.3 है तो ये 0.3/2 होगा, अगर ये 0.6 है तो 0.6/2 होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है हमको,
विथ देखते जाना है, तो विथ के हिसाब से हमारा सेंट्रल लाइन का लेंथ भी चेंज होता जाएगा। नाउ व्हाट इज द अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का विथ कितना होगा, पहले बोलो। सेंट्रल लाइन विल बी सेम, सेंट्रल लाइन मतलब इसका जो सेंट्रल लाइन है, इसका भी वही सेंट्रल लाइन है, इसका भी वही सेंट्रल लाइन है, मतलब कि दिस सेंट्रल लाइन विल बी पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट फॉर ऑल द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सेंट्रल लाइन यही रहेगा, सिर्फ ये डिडक्शन ऑफ वेरी होता होता जाएगा, ये जितना भी लेंथ है ये वेरी होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द विथ। ठीक है, नाउ टेल मी फॉर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन व्हाट शुड बी द विथ, ब्रेथ कितना होना चाहिए अर्थवर्क इन एक्सकवेशन के लिए, तो उसके लिए हमको कौन सा ब्रेथ देखना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर का ब्रेथ देखना चाहिए, बोलो। फॉर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन विच width has to be considered, ऐसा स्ट्रक्चर है ऊपर से ये वाला है, अगर इसको काट के सामने से देखोगे तो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, अब तुमको अर्थवर्क करना है, तो अर्थवर्क के लिए क्या आ जाएगा, ये सब है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल यहाँ तक है, ओके, यहाँ से इस तरफ है ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसके नीचे जितना भी ऑल दिस कम्स अंडर द फुटिंग। अब फुटिंग के लिए हमको यहाँ पे अर्थवर्क करना है, ठीक है, मतलब काटना है हमको कुछ, ग्राउंड को, माटी को काटना है, ओके, तो कितना काटेंगे बोलो, तो व्हाट शुड बी द विड्थ, 0.9 में 0.9। ठीक है, तो ये जो विथ आ रहा है अब फॉर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ये आ जाएगा 0.9। ठीक है, तो ये 0.9 0.9 0.9 करके है। सेंट्रल लाइन इज सेम, सबका सेंट्रल लाइन एक है, टोटल सेंट्रल लाइन लेंथ एक है बिफोर डिडक्शन। ठीक है, मतलब ये वाला वॉल का सेंटर लाइन प्लस ये वाला वॉल का सेंटर लाइन और तीनों वॉल का सेंटर लाइन ऐड करेंगे तो 30.4 ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 34.1 मीटर ही होगा। ठीक है, लेकिन जब डिडक्शन करते जाएंगे तब लेंथ में वेरिएशन आता जाएगा। सो योर लेंथ इज हाउ मच, 34.1 है, एक्चुअल सेंटर लाइन लेंथ इज 34.19, बट व्हेन वी कंसिडर, जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो यहाँ से हाफ ऑफ द विथ माइनस जाएगा, यहाँ से हाफ ऑफ द विथ माइनस जाएगा। सो व्हाट विल बी द न्यू सेंटर लाइन लेंथ फॉर दिस अर्थवर्क एक्सकवेशन, कितना होगा बोलो। टोटल सेंटर लाइन लेंथ है 34.1, लेकिन एक्चुअल में जब कंस्ट्रक्शन होगा तो ये वाला विथ, ये वाला लेंथ माइनस हो जाएगा, ये वाला लेंथ माइनस होगा, तो कितना लेंथ माइनस करना चाहिए व्हेन वी आर कंसीडरिंग अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, तो व्हाट इज दिस विथ, ये कितना है बोलो, ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ हमको माइनस करना है टोटल सेंटर लाइन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये माइनस जाएगा। व्हाट इज दिस लेंथ, 34.1 माइनस ये लेंथ करना है, ये कितना है बोलो, ये लेंथ कितना है, 33.8 में 0.9/2 0.9/2। ठीक है, अब दोनों तरफ है तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 34.1 माइनस 2 इंटू 0.9/2। ओके, तो ये डिडक्शन है। 2 इज व्हाट, 2 इज द नंबर ऑफ जंक्शन, यहाँ पे एक जंक्शन है, यहाँ पे एक जंक्शन है, इसीलिए 2 इज द नंबर ऑफ जंक्शन और ये हाफ ऑफ द विथ हो जाएगा, तो दिस ये कट के तो हम लोग बोल सकते 34.1 माइनस 0.9 करके एक्चुअल लेंथ जो कंसिडर करना चाहिए फॉर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन विल बी 34.1 माइनस 0.9 विच इज कितना आएगा, देखो मेरा शायद यहाँ पे गलत होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि हमने 0.9/2 नहीं किया है शायद। सो ये आएगा 33.2। ओके, तो यहाँ पे 0.9/2 होना चाहिए था, दिस विल बी बाई 2। ओके, तो देखो ये 33.2 आएगा, ये गलत है। ओके, दिस विल बी 33.2, प्लीज नोट इट डाउन, ये नोट करके रखो, हम जब पूछेंगे तो हमको ये वैल्यू चाहिए। ओके, ये वैल्यू हमको चाहिएगा, ये लिख जाओ। फॉर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन द एक्चुअल सेंटर लाइन लेंथ इज 33.2 मीटर। कैसे आया, टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस नंबर ऑफ द जंक्शन, 2 ठो है नंबर ऑफ द जंक्शन, ठीक है, इनटू इधर से हाफ ऑफ द विथ, इधर से हाफ ऑफ द विथ। ठीक है, सो 0.9/2 0.9/2 0.9 क्यों है, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का ये 0.9 होता है।
लिखो ये 33.2 होना चाहिए, प्लीज नोट इट डाउन। लिखे छो? व्हेन आई विल आस्क प्लीज टेल मी, ओके? ये वैल्यू क्या कितना होना चाहिए? सो फॉर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इट इज 33.2 मीटर। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे ऊपर की तरफ, मतलब इसके अर्थवर्क एक्सकवेशन हो गया। अब क्या बिठाएंगे? ये पीसीसी बिठाएंगे। इसका पीसीसी का विड्थ कितना है? यहाँ पे विड्थ कितना होगा? ये वाला पीसीसी इन फाउंडेशन का विड्थ कितना होना चाहिए? दिस इज द पीसीसी, सो व्हाट इज द विड्थ? 0.9 0.9। मीटर। ठीक है, और माटी निकाला, उसके ऊपर ही तो हम ये बिठाएंगे ना, तो सेम विड्थ होगा। अब इसका भी क्या हो जाएगा? 33.2 ही आएगा। कैसे आएगा? वही टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज 34.1। ठीक है, तो 34.1 से ये वाला है 0.9/2, ये वाला है 0.9/2। टोटल जंक्शन कितना है? 2 टो है, सो डिडक्शन विल बी 2 इंटू 0.9/2। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.9/2। ओके, ये वाला है 0.9/2 होगा, तो ये करने से भी 33.2 आएगा। तो ये भी वैल्यू भी गलत है। ओके, दिस विल बी योर 33.2 मीटर। जितना अर्थवर्क का था पीसीसी का भी वही रहेगा, बिकॉज विथ इज सेम। ओके, अब तुम लोग ही हमको बोल के कैलकुलेट करके बोलो व्हाट विल बी द। अब उसके ऊपर क्या बिठाएंगे हम? उसके ऊपर बिठाएंगे ब्रिक वर्क, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फर्स्ट फुट स्टेप ऑफ द फुटिंग। ये सेकेंड स्टेप। ठीक है, अब इसका बोलो, इसका कितना होगा? ब्रेथ कितना होगा? ब्रेथ ब्रेथ कितना होगा? ये ब्रेथ कितना होना चाहिए? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क। यहाँ पे ब्रिक वर्क करेंगे, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप। ठीक है, दिस इज प्लिंथ वॉल, दिस इज सुपर स्ट्रक्चर वॉल। तो इसका कितना होगा बोलो? ब्रेथ कितना होगा? कितना है ब्रेथ? 0.6। हाँ, 0.6 है। नाउ कैलकुलेट द टोटल एक्चुअल सेंटर लाइन लेंथ। टोटल सेंटर लाइन लेंथ है 34.1। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल सेंटर लाइन लेंथ? पता है? बोलो एक्चुअल सेंटर लाइन लेंथ। हमको यहाँ से माइनस करना है, ये लेंथ माइनस करना है। ये रहा 2 जंक्शन, सो दोनों तरफ से माइनस होगा। कितना? हाफ ऑफ द विड्थ। Width is 0.6. So what is the actual center line length? 34.1। कैसे? 33.4 तो 34.1 is the total center line length। मतलब पूरा लेंथ अगर मिलाएंगे तो टोटल सेंटर लाइन लेंथ इज 34.1। बट पूरा में से हमको ये लेंथ माइनस करना है, ये लेंथ माइनस करना है, बिकॉज इट इज ओवरलैपिंग। तुमने ऑलरेडी यहाँ पे पीसीसी कंस्ट्रक्ट कर दिया है, तो ये लेंथ अगर कंसीडर करोगे तो फिर से उसके ऊपर ही पीसीसी बनेगा, तो वो तो नहीं होगा। तो ये एरिया हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये एरिया डिडक्ट करने के लिए ये लेंथ डिडक्ट करना है। ओके, दोनों तरफ से। दो ठो जंक्शन है, इसलिए दोनों तरफ से बोल रहे हैं। सो हाउ में व्हाट इज द डिडक्शन देन? 34.1 माइनस ये लेंथ, ये लेंथ। फॉर्मूला क्या था? टोटल सेंटर लाइन लेंथ माइनस नंबर ऑफ द जंक्शन। नंबर ऑफ जंक्शन कितना है? यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, सो नंबर ऑफ जंक्शन 2 है। ठीक है, so the formula was total center line length minus number of junction into half of the width। इसका width कितना है? 0.6 है। तो कैलकुलेट करने से कितना आना चाहिए था? टोटल सेंटर लाइन लेंथ विच इज 34.1 नंबर माइनस नंबर ऑफ जंक्शन कितना है? 2 ठो है, इनटू ये लेंथ कितना है? हाफ ऑफ द विड्थ है। ठीक है, तो यहाँ से हाफ ऑफ द विड्थ, यहाँ से हाफ ऑफ द विड्थ जा रहा है, मतलब दोनों तरफ से, इसलिए 2 है यहाँ पे। सो हाफ ऑफ द विड्थ इज हाउ मच? 0.6/2। So what is the actual center line length? Excuse me। तो फिर actual center line length कितना आएगा बोलो? 34.1 minus 2 into 0.6/2। ओके, so that is 33.5। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के लिए है तुम्हारा 33.5। ओके,
यहाँ पे बाई 2 होगा, ये बाई 2 हमने नहीं दिया, सो दिस इज 33.5। ये हो तुम्हारा 33.5। प्लीज नोट इट डाउन, ओके। ठीक है, अब सेकेंड फुटिंग का भी बोलो तो हमको। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फुटिंग, सेकेंड स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप। इसका निकालो, इसका एलसी निकालो हमको, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल सेंटर लाइन लेंथ। फर्स्ट ये डायग्राम में क्या बिठेगा, विथ बिठना चाहिए। ये वाला स्ट्रक्चर का विथ कितना है, दिस इज अ सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सॉरी सेकेंड स्टेप है ये, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप, ठीक है, ये सेकेंड होगा। सो विथ विल बी 0.5 मीटर, ओके। एंड वी नो एक्चुअल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ है तुम्हारा सेंट्रल लाइन का 34.1 है, ठीक है। अब टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ, उसमें कितना माइनस जाएगा, ये लेंथ माइनस करना है, तो करके बोलो कितना आएगा। पूरा लेंथ में we have to subtract this length and this length। पूरा लेंथ है कितना, पूरा लेंथ है तुम्हारा 34.1, ठीक है। मतलब ये जो पूरा लेंथ है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, और ये जो पूरा लेंथ है कितना है 34.1 है। इसमें से हमको कौन सा माइनस करना है, ये लेंथ और ये लेंथ माइनस कर देना है। तो बोलो कितना होगा माइनस करने के बाद। 33.6 33.7 6 6। सिंपल कैसे है, देखो 34.1 है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ जंक्शन कितना है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, सो 2 इंटू हाफ ऑफ द विथ। हाफ ऑफ द विथ कितना है 0.5/2 है, राइट, 0.5/2। तो ये कट जाएगा, तो 34.1 माइनस 0.5 कर दो, आएगा 33.6। वेरी गुड। तो सेकेंड स्टेप का है 33.6 मीटर, ओके। यहाँ पे गलत है, दिस विल 33.6, तो यहाँ पे बाई 2 नहीं किया हमने, ओके। अब प्लिंथ वॉल का भी वैसे करके निकाल लेते हैं, ठीक है। प्लिंथ वॉल का भी चलो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 34.1 माइनस नंबर ऑफ जंक्शन 2 है इंटू हाफ ऑफ द विथ। प्लिंथ वॉल का विथ कितना है 0.4 है, सो 0.4/2, तो 34.1 माइनस 0.4, ठीक है, 34.1 माइनस 0.4 आ रहा है 33.7, ओके, 33.7। तो प्लिंथ वॉल का सेंटर, एक्चुअल सेंटर लाइन लेंथ विल बी 33.7, ये 7 होगा, ओके। अब ये ऊपर वाला वॉल आ जाएगा, सुपर स्ट्रक्चर वॉल, इसका है 0.3 है, तो सेम 34.1 माइनस 2 इंटू 0.3/2, ओके। तो आएगा तुम्हारा 34.1 माइनस 0.3 करेंगे तो 33.8 आएगा, ओके। यहाँ पे बाई 2 कर देंगे, ठीक है, तो आएगा 33.8, ओके, 33.8। चलो लेंथ का कैलकुलेशन होगा, सेंटर लाइन का यही है कि ओनली तुमको लेंथ निकालना पड़ता है, ओके। पिछले बारे में टोटल लेंथ से काम किया था, यहाँ पे पार्टीशन वॉल है तो जंक्शन आएगा, जंक्शन मतलब हमको लेंथ को रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करेंगे, नंबर ऑफ जंक्शन इनटू हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ द सेक्शन, ओके। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का जो है उसका कितना नंबर है, हम एक ही पूरा सेंटर लाइन को एक सेंटर लाइन पकड़ के कर रहे हैं, ओके। सो हियर इट विल बी 1 ओनली। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, मतलब सेंटर लाइन का लेंथ कितना है। तो कितना आया था हम लोग का सेंटर लाइन का लेंथ, लिखे थे कितना आया था फॉर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन का सेंटर लाइन का एक्चुअल सेंटर लाइन का लेंथ आफ्टर डिडक्शन कितना आया था, खाते लिखेছো বলেছিলাম तो लिखते। 33.2। वेरी गुड, 33.2,
ठीक है। विथ कितना होगा, विथ है तुम्हारा लास्ट वाला जो भी होगा स्ट्रक्चर उसका विथ, ओके। अर्थवर्क का भी उतना ही होना चाहिए, सो 0.9। ठीक है। डेप्थ कितना होगा, ग्राउंड लेवल से जितना स्ट्रक्चर है सबका डेप्थ इंक्लूड करो, सो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 तो 0.9। कैलकुलेट करके बोलो यहाँ पे कितना आएगा, मेरा गलत आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे हमने गलत कैलकुलेशन किया था। सो व्हाट इज द आंसर, 33.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9 কত আসছে? हाँ 26.892। ओके वेरी गुड, ये तुम लोग लिखो, ओके दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके ये यूनिट विल बी मीटर क्यूब, ओके तो हो गया। यहाँ पे मैंने गलत किया, देखो 32.3 लिखा था इसीलिए। अब सेकंड है तुम्हारा क्या, पीसीसी इन फुटिंग, तो सेम इसमें भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी वन नंबर, एक ही कंसिडर करेंगे। लेंथ इसका अर्थवर्क का जो है, विथ इसका भी सेम विथ है, तो तुम्हारा लेंथ विल बी सेम, आफ्टर डिडक्शन लेंथ विल बी 33.2 ओनली, ओके। फिर विथ आएगा कितना, देखो विथ पीसीसी का विथ कितना है 0.9, यहाँ पे 0.9। डेप्थ कितना होगा, पीसीसी का डेप्थ देखो 0.3 है, सो 0.3, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू, टेल मी, मीटर क्यूब में आएगा 8.964 2 इंटू 0.9 इंटू 0.3, 8.964, वेरी गुड, मीटर क्यूब, ओके 8.964 मीटर क्यूब, ठीक है। अब आता है ब्रिक वर्क इन फुटिंग, ये वाला होगा, ठीक है। इसका कितना आया था, ये भी वन ही पकड़ेंगे। ब्रेथ कितना आया था, लेंथ कितना आया था, in this case what is the actual center line length after deduction, 33.5 33.5 33.5, ठीक है। हाँ 33.5। विथ कितना है, ब्रेथ, फॉर ब्रेथ सी दिस डायग्राम, ओके फॉर ब्रेथ एलिवेशन से तुमको मिलेगा हॉरिजॉन्टल जो भी डायमेंशन है इट विल बी कमिंग अंडर ब्रेथ, और वर्टिकल जो भी आएगा ये वाला कॉलम में आएगा। तो व्हाट इज द ब्रेथ, हम लोग ये कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका ब्रेथ कितना है 0.6 है। 0.6 अब डेप्थ कितना है बोलो देख कर, ये वाला स्ट्रक्चर का डेप्थ कितना है, ये वाला स्ट्रक्चर का डेप्थ कितना है, ये डेप्थ कितना है 0.3। 0.3 कैलकुलेट करके बोलो कितना आएगा, 33.5 इंटू 0.6 इंटू 0.3, तो 6.03, ओके। 6.03 हाँ देखो बाउंड्री और इसमें यही डिफरेंस है कि उसमें क्या था, एक ही सेंटर लाइन लेंथ था, सब स्ट्रक्चर का सेम सेंटर लाइन लेंथ, लेकिन पार्टीशन वॉल आने की वजह से क्या आ रहा है, वहाँ पे जंक्शन आ रहा है, जंक्शन जहाँ पे भी आएगा डिडक्शन होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन द विथ ऑफ द सेक्शन, इसीलिए देखो सबका विथ अलग है तो ये डिडक्शन भी अलग है, सो एक्चुअल लेंथ इज ऑल्सो चेंजिंग, ओके। तो पार्टीशन वॉल में यही डिफरेंस है, पिछले वाले में क्या था, एक ही सेंटर लाइन लेंथ था सबका ही। तो ये फर्स्ट स्टेप का होगा, सेकेंड स्टेप का कितना है, सेकेंड स्टेप इज दिस वन, ओके। सो ये भी एक होगा, इसका कितना आया था सेंटर लाइन लेंथ 33.6, राइट 33.6 कैलकुलेट किए थे हम लोगों ने। विथ कितना है, ये है विथ 0.5, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन कौन सा है, ये है, सो 0.5। और थिकनेस कितना है, ये डेप्थ कितना है जो वर्टिकल डायमेंशन है विच इज 0.3, तो 0.3 करके देखो कितना आएगा, 33.6 इंटू 0.5 इंटू 0.3, तो 5.04, 5.04, ओके। सब मीटर क्यूब में, ओके। अब आ रहा है बचा प्लिंथ वॉल एंड सुपरस्ट्रक्चर वॉल, तो प्लिंथ वॉल का निकालते हैं, दिस इज ऑल्सो ब्रिक वर्क, ओके ब्रिक वर्क इन प्लिंथ वॉल, ये भी सेम आएगा। प्लिंथ वॉल का आया था हम लोग का 33.7, ठीक है। फिर आया था यहाँ पे हम लोग का ब्रेथ कितना है, हॉरिजॉन्टल वाला देखो तो 0.4 है, ठीक है।
डेप्थ कितना है? अब डेप्थ नहीं है, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर है तो हाइट होगा. सो व्हाट इज दिस हाइट? दिस इज 0.6. ओके, सो दिस इज 0.6. करके देखो कितना आएगा. 33.7 इंटू 0.4 इंटू 0.6, 8.088, राइट. 8.088 मीटर क्यूब. अब बचा तुम्हारा लास्ट का ब्रिक वर्क इन प्लिंथ वॉल. तो सेम इसका भी एक ही होगा. प्लिंथ वॉल सुपर स्ट्रक्चर वॉल का है 33.8. ठीक है, 33.8. ब्रेथ है 0.3, 0.3 एंड हाइट इज 3.5. देखो 3.5, तो 3.5 तो मल्टीप्लाई कर दो. ब्रेथ लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा एरिया, एरिया इंटू डेप्थ या हाइट. 33.8 इंटू 0.3 इंटू 3.5, 35.49. okay, 35.49. so like this way you have to calculate. okay, partition wall मतलब जहाँ पे junction आएगा you have to first calculate the total central line length, then do the deduction based on the number of the junction as well as based on the width of the section. देखो हर एक विथ का सेक्शन अलग अलग है, इस सेक्शन का विथ अलग है तो डिडक्शन भी अलग अलग होगा, इस हिसाब से लेंथ भी अलग अलग है. ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती किया है इसीलिए वो डिवाइड बाय 2 नहीं किए थे. मतलब 2 इंटू फॉर्मूला वही है, डिडक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ जंक्शन इंटू हाफ ऑफ द विथ ऑफ द सेक्शन. ठीक है, क्लियर? यस मैम. ओके, ठीक है. यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, वो हमने गलती कर दिया है. ओके, तो ठीक है, आज का इतना ही करते हैं हम लोग. वेट. বাকিরা কই? আর কি কে এসেছিল বলেছিল এখানে দেখি. ও অনেকজন আনসার দিচ্ছে এখানে. অমর্তা, অনমোল, তন্ময়, রূপম, ভাস্কর, সৌভিক মন্ডল, এরা আর এখন আসেনি. ওকে, থ্যাংক ইউ. আচ্ছা, প্লিজ ট্রাই টু অ্যাটেন্ড নেক্সট ক্লাস অফ কনস্ট্রাকশন প্ল্যানিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট. ওকে, বিকজ there I will be giving some suggestion for your upcoming internals. okay, so please try to attend that class at least. ठीक है ना?